So in this slide, we'll discuss the different types of work done. So broadly classifying, हम work done को force के base पे divide करते हैं. First is the work done by a constant force, and secondly the work done by a variable force. यानी एक केस में हम कह रहे हैं कि जो force है that is constant, और second केस में हम कहते हैं कि जो force है that is variable. First of all, what is work done by a constant force? इस केस में जो work है that is defined as the product of magnitude of displacement and the scalar projection of force along the displacement, यानी W equals to D into F cos of theta, जहाँ पे F cos of theta जो है उसे हम कहते हैं scalar projection of force along the displacement. इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेल्टा x एक डिस्प्लेसमेंट कवर की है, और जो फोर्स है उसका कंपोनेंट जो कि x की डायरेक्शन में है उसे हम स्केलर प्रोजेक्शन कहते हैं, दैट इज F cos of theta, where theta is the angle of action of force. इस टाइप के वर्क एग्जांपल्स हैं अ ब्लॉक being pulled on a flat straight surface, यानी इस केस में हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज अ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. Second example is the free fall for a range of small heights, यानी अगर एक negligible change of heights के लिए कोई चीज free fall में है तो उसके ऊपर सिर्फ एक constant force लग रही है, that is the force of gravity. And lifting something vertically by supplying a constant force. इस केस में भी जो हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं उसमें हम फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज अ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर पुल किया जा रहा है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कुछ चीज फ्रीली फॉल कर रही है. इसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है. वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, ऑल द कंपोनेंट्स, या इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स. सो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, स्केलर प्रोजेक्शन. जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि F cos of. So there's nothing new. F cos of theta और वर्क डायरेक्ट रिलेशन में है, so this F cos of theta is called the scalar projection of force along the displacement. Another problem is that in which of the following work done is zero? Option A, a football being kicked. Option B, the earth revolving around the sun. Option C, a wall being pushed. And D, both B and C. The correct option is option D, both B and C. का solution देखते हैं. In option B, theta equals to 90 degrees, यानी हम कह रहे हैं the earth revolving around sun, तो ये एक circular motion का example है जिसमें centripetal force और displacement की जो direction है, the angle, it is 90 degrees, so cos of 90 is 0. In option C, we see a wall being pushed. अब wall जो है push करने से displace नहीं होती, so the displacement is 0. In either case, both these conditions refer zero work done. Now let us see what is the work done by a variable force. इस केस में हम कहते हैं कि जो force applied है that is not constant. So the FD graph, जो force displacement graph है, that is not a straight line. The work cannot be calculated by simple formula used previously. यानी पहले जो हम formula use कर चुके हैं W equals to FD cos of theta. अब क्योंकि F जो है that is not constant, and of course the theta that is also not constant, तो उस केस में हम एक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं. एग्जाम्पल इज द रॉकेट ascending due to variation in gravitational force by the inverse square law. यानी हम न्यूटन्स लॉ से हम कह रहे थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और रेडियस है ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में है, यानी F is inverse relation to R square. So example is a free fall by great heights, यानी जब heights ज्यादा हो तो again the inverse square law applies. So let us suppose that the FD graph is divided into n number of segments such that each segment is approximated to have
a constant force. तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं that is W equals to sigma fi cos of theta I into delta di, जहाँ पे I की वैल्यू जो है it can range from 1 up to n. यहाँ पे हम एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखते हैं जिसके अंदर जो लाइन है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मीनिंग दैट द फोर्स इट इज नॉट कांस्टेंट. हम इसे डिफरेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बाय द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स हम इसे डिवाइड करते हैं एंड वी अज्यूम दैट द फोर्स फॉर ईच सेगमेंट इट इज रफली कांस्टेंट. यानी यहाँ से यहाँ तक जो एक सेगमेंट इसमें फोर्स कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हर सेगमेंट के लिए डिफरेंटली द फोर्स और एंगल थीटा है दैट आर कांस्टेंट. तो हम हर एक के लिए एफ डी कॉस ऑफ थीटा से कैलकुलेट करके उन सबको ऐड करते हैं एंड वी शो दैट एडिशन बाय द साइन ऑफ सिग्मा. दैट इज इनफ फॉर द स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम टाइप्स ऑफ फील्ड डिस्कस करेंगे. थैंक यू.